having a panel discussion on union budget. For me to introduce our speaker, Dr. S.B. Rathore, who is a former associate professor of commerce at Shamlal College, Delhi University. Our speakers have spent almost their entire career guiding people about finances. I'll bring them up during this discussion or at the end of it. Speakers to start the panel discussion. So, sectors of our economy. Please give a chance to Mr. Saurabh first. He is chartered accountant, he is a professional. Thank you so much. Thank you so much, Arpita, and thank you every team member for calling me. From the budget perspective, I think the budget is actually in coming years, let's say, plan our year spendings. Similar, the company would or spend the money into multiple sectors. There would be some sectors which is more important for the economy, let's say reducing the carbon, reducing car would be like a priority to the government. So every members of the society. So I think this is a relevance of budget to the budget impacts me because I have a lot of investments in India. Thank you, Saurabh. Have discussion with you. Thank you. It is a privilege to me also. When you pass out the CA from India or from UK? Okay, right. I joined my college in the year 1977 and I retired from Delhi University on 31st December 2019. After retirement, still I am delivering lectures online, offline, going to different colleges and without taking any honorarium, without taking any conveyance, without taking any gift, etc. So that is my son is also is lecturer in Gargi College. So he has delivered many lectures on budget 2003-2004 and I have prepared one PPT for this purpose because we have income tax in second year, BCom second year and BCom pass second year, and now one course has been started as financial literacy that is taught to first year students first semester and we are giving just personal tax information, basic information. Okay, right. This हम जिस भी बजट की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फॉर विच असेसमेंट ईयर इज 2024-25. अच्छा, वी हैव टू रिजीम्स, ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, न्यू टैक्स रेट रिजीम. देन अभी सौरभ बता रहे थे कि वो टैक्सेबल है उनकी इनकम ऑल्दो ही इज मे बी नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट भी टैक्सेबल हो जाते हैं यहाँ पर. मतलब वी टैक्स ऑन द ग्लोबल इनकम रेजिडेंट के लिए. सीनियर सिटीजन की एज है 60 ईयर्स है, सीनियर की 60 से प्लस, नॉन सीनियर की लेस देन 60, सुपर सीनियर की 80. हमारे हिंदुस्तान में इनकम टैक्स जो डिस्क्रिमिनेट करता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस, वेदर यू आर लिविंग जॉइंट फैमिली और सिंगली, किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता एक्सेप्ट ओल्ड रिजीम के अंदर है ऑन द बेस ऑफ एज. यदि लेस देन 60 है तो नॉन सीनियर, 60 और मोर बट लेस देन 80 इट इज सीनियर, मोर देन 80 इट इज सुपर सीनियर. एग्जेम्पशन लिमिट्स आर डिफरेंट. नॉन रेजिडेंट whether you are 60, whether you are 80 or 45, it is valid the same thing for all, which is 2,50,000. Exemption limit to 5 lakh 5%, 5 to 10 20, above 10 30. फिर सरचार्ज है, टैक्स पर टैक्स है. देन उसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस है 4% का. अब जैसे सौरभ नॉन रेजिडेंट है तो यहां पर एक 87A की रिबेट होती है. यदि आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, माफ हो जाएगी, रिबेट मिल जाएगी आपको. लेकिन ऐसा सौरभ को नहीं मिलेगा. न्यू टैक्स रेट रिजीम शुरू हुआ 2 साल पहले, अभी भी बाय डिफॉल्ट कर दिया इस साल से. बेसिक इनकम लिमिट वहां पर 2.5 है, वहां पर बेसिक इनकम लिमिट 3 लाख है, वहां पर बेसिक इनकम लिमिट 5 लाख. लेकिन यहां पर सबके लिए, चाहे सौरभ हो, राठौर हो, समीक्षा हो, सबके लिए एक है 3 लाख रुपया. सरचार्ज वही जो ओल्ड रिजीम के अंदर है, हेल्थ एजुकेशन सेस वही 4% सबके लिए. रिबेट रेजिडेंट को मिलेगी, सौरभ को नहीं मिलेगी. और यहां पर टैक्स रेट्स हमने डिफरेंट कर दिए. 3 लाख तक एग्जेम्पशन लिमिट, 3 to 6 5%, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 12 to 15 20 और above 15 कर दिया 30. लेकिन पहली बार स्टैंड डिडक्शन हमें मिलने लगी है 50,000 की और फैमिली पेंशन 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर.
अंडर न्यू टैक्स रेजिम लास्ट ईयर तक नहीं मिलती थी, और कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी हमें 80C से लेकर 80U तक। जैसे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की है, HRA की है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, सेक्शन 80C से 80U है, 80C2 एक होती है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम विच इज अवेलेबल, 80D मेडिक्लेम, कैंसर एटसेट्रा डिजीज है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन है, डोनेशंस की है, 80 TTA TTB है, ये डिडक्शन समय नहीं मिलती। अब न्यू टैक्स रेट रिजीम जो है हम इसको अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में बोलते हैं, और सेक्शन का 115 BAC बजट 2023 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 असेसमेंट ईयर उसके बाद शुरू होता है 2024-25। लोअर टैक्स रेट्स है ओल्ड टैक्स रेट्स के कंपैरिजन में, स्टैंड एक्शंस पहली बार अलाउ कर दी, फैमिली पेंशन पे अलाउ कर दी, लेकिन आपको HRA नहीं मिलेगा। आपका हाउसिंग लोन का जो 2 लाख का इंटरेस्ट है वो आपको अलाउड नहीं होगा, आपको 80C से 80U तक नहीं मिलेगी। ये कुछ कंडीशंस हैं, और इसके साथ हमने कर दिया इफ बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रेजिम है, यदि आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान का अलग ही सिनेरियो बनता है, मैंने कई बार मिनिस्ट्री को लिखा है लेकिन कोई एक्शंस नहीं। अभी भी यही है, 3 लाख तक की इनकम ओल्ड रेजिम के अंदर मेरी फ्री, 4 लाख तक की फ्री ऑन अकाउंट ऑफ रिबेट 87A, 5 लाख तक की फ्री। यदि 5 लाख 100 रुपया हो गया तो उस पर टैक्स लगेगा 12,520, क्योंकि मुझे रिबेट नहीं मिलेगी। इनकम बढ़ी मेरी बाय 100 रुपीज, लेकिन टैक्स का अमाउंट बढ़ गया मेरे पास 13,021। मेरी 5,15,000 इनकम है और टैक्स लग रहा है उस पर 16,120। 15,000 की इनकम पर 16,120, मैं कहता हूं कि मेरा टैक्स मोर देन 100% है, बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं फिर लोग टैक्स की चोरी कर लेते हैं, या करना सीख लेते हैं, या जबरदस्ती करते हैं, या टैक्स को छुपाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का नया टैक्स रेजिम लाने का पर्पज यही था कि लोग क्या करते थे, 80C से लेकर 80U डिडक्शंस क्लेम करते थे, लेकिन वो पैसा बचाते नहीं थे। 80C में PPF नहीं जमा कराते थे, मेडिक्लेम नहीं करवाते थे, लेकिन रिबेट ले लिया करते थे। और यदि मैं बात करूं न्यू टैक्स रेजिम की, वहां भी अब जो सिस्टम जो आया 23-24 में 4 लाख तक मेरा फ्री हो जाएगा, 5 लाख तक फ्री, 7 लाख तक फ्री। लेकिन 7 लाख 100 रुपया हो गया तो मेरी इनकम पर टैक्स लगेगा 26,010 रुपया। इनकम बढ़ी मेरी 100 रुपए से, जो कि रिबेट हो गई खत्म। इनकम बढ़ती है मेरी 100 रुपए से, टैक्स लगता है 26,010। ये लॉजिकल है। हम अमीरों को तो मर्जर लीव देते हैं, लेकिन स्मॉल टैक्स पेयर को यहां पर कोई मर्जर लीव का प्रोविजन नहीं है। मेरी इनकम 7,25,000, उस 25,000 पर टैक्स भरूंगा 28,600, और मैं इसको किसी तरह से बचा नहीं सकता। कोई मेरे पास तरीका नहीं है बचाने का। जी जी, यस, एंड वी वांट कि अर्पिता जैसे क्वेश्चन पूछ रही है ना, वी विल गो ऑन दैट ट्रैक। हाँ, दोबारा बताएं क्या? यस सर, हाँ, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। So, sir, my next question is like, रीजन बिहाइंड नहीं, 87 का एक को देखो, रिजीम 87 का पर्पज ये है, हम अपने रेजिडेंट को देना चाहते हैं, ना कि नॉन रेजिडेंट को। हम अपने देश के वासियों को जो हमारे यहाँ 180 और मोर डेज रहते हैं, या 60 डेज 365 डेज का जो प्रोविजन है, हम अपने रेजिडेंट को देना चाहते हैं, हम नॉन रेजिडेंट को देना नहीं चाहते। हमारा रेजिडेंट जो होगा इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, ही इज पेइंग टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम। वो टैक्सिटी है, बात अलग है, लेकिन नॉन रेजिडेंट तो जो इनकम देगा वो सिर्फ इंडियन इनकम पर देगा ना, और रेजिडेंट देगा पूरे ग्लोबल इनकम पर। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो नेशनल रेजिडेंट्स हैं उनका हित देखना है, नॉन रेजिडेंट का कम देखना है। दैट इज द पर्पस। Reason behind the hike from 5 lakh exemption to the exemption limit of 7 lakh in the new budget. अब देखो, इलेक्शन आ रहा है नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो इलेक्शन भी तो मैंने जीतना है ना। जी जी जी, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बजट बनता कैसे है। सो बजट जब बनता है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देयर इज अ सेपरेट डिवीजन कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो ये बजट बनाता है। एक बहुत बड़ी टीम होती है जो बजट बनाती है, और बजट बनाने का एक कंप्लीट सेट प्रोसेस है जिससे बजट बनता है। मल्टीपल डिपार्टमेंट से, मल्टीपल मिनिस्ट्री से पूछा जाता है कि आप बताइए कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ कंसल्टिंग फर्म, मैं KPMG में था 10 साल से, जो हमें इस बार ठीक करने चाहिए। दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसेस। जब पूछा जाता है तो मिनिस्टर्स बोलते हैं कि अब मिनिस्टर्स आर जस्ट
KPMG, big consulting firms जो रूट कॉज को पहचान पाते हैं और ज्यादा कि कैसे. नाउ कमिंग टू सेक्शन 87A, सबसे पहले एंड रादर देन नॉन रेजिडेंट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस इफ यू लुक एट द इनकम ऑफ पर्सन हु इज स्टेइंग आउटसाइड इंडिया. जैसे अगर मैं इंडिया से बाहर आया हूँ, मैं तभी इंडिया से बाहर आया हूँ, नहीं तो definitely for your personal growth. From 5 lakh to 7 lakh is 2. You have to, आप actually decrease करते जा रहे हो, right? लेकिन increasing cost of living, they have increased. To a normal people, जो 5 लाख की वैल्यू थी उसको 7 लाख कर दिया, और वो हर साल इंक्रीज होगा अगर आपको रिलीफ देना है आम आदमी को. सौरभ, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है, सौरभ मेरा क्वेश्चन में ये है, हमने 5 लाख तो ओल्ड रिजीम में रखा, हमने 7 लाख कर दिया न्यू रिजीम में. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, वी आर आस्किंग द पब्लिक टू ऑप्ट फॉर द न्यू टैक्स रिजीम. जब ये मिनिस्ट्री के साथ हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कि न्यू रिजीम में रहेगी, जो कि एक बेटर सोल्यूशन है डेवलप इकोनॉमी के लिए. सर पॉइंट क्या है, अगर हम मल्टीपल टैक्स रिजीम रखते हैं तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर चीजें. आप देखो वर्ल्ड वाइड इंडिया में कॉम्प्लिकेशंस आर मच हायर बिकॉज ऑफ, आप 20% टैक्स दे दीजिए, 20 रुपए 80 रुपए में आप जो मर्जी करिए टैक्स से बचने के. सैलरी एम्प्लॉइज के एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को दे रहे हैं. आई थिंक दैट्स अ रीजन ऑफ कमिंग विद अ न्यू टैक्स रिजीम्स. जो सौरभ बिल्कुल तुमने बिल्कुल ठीक बताया है कि सैलरी वाले बिना डिडक्शंस, बिना इन्वेस्ट किए हुए, बिना स्पेंड किए हुए वो क्लेम कर रहे थे 80G, 80DD, 80, मतलब सेविंग बैंक इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और उनको रिफंड दिए जाते थे. सबसे अच्छी बात है ये काम, देखो टैक्स एक्सपर्ट चाहे वो CA हो, टैक्स एडवोकेट्स हो, मतलब सीखते वहीं से. इसमें दोष टैक्स एक्सपर्ट्स का भी है. कमीशन बेसिस पे काम चलता था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है. आपका रिफंड कितना है, 20,000 मिलेगा आपको, 15 मिलेगा आपको, 16, 4,000 वो बीच में जो कट होता था उसकी वजह से डिडक्शन जो आपने नहीं लेनी चाहिए वो लोग लेते थे. ATC मैंने किए नहीं और ATC क्लेम कर लिया. HRA की जो आपने बात बिल्कुल ठीक कही, और उस टाइम होता कि तो इनकम टैक्स पकड़ेगा तो क्या है. मुझे मालूम है मैंने 10 साल चोरी की और लाख रुपया टैक्स बचाया, 10 लाख. मैंने एक बार में यदि पकड़ा भी गया, मैं ITO को मैं उसका जिसका जितना उसका दाम होगा उसको दाम देके मैं खरीद लूंगा. ये पहले हमारे दिमाग में था, लेकिन जब से ये आ गया आपका सारा फेसलेस, सब जब से आप आ गया आपका ऑनलाइन ई फाइलिंग, जब से करप्शन बहुत रुक गई है. करप्शन अब लगभग पिछले 2 साल से 0 के बराबर हो गई है. रिटर्न फाइलिंग में, रिफंड लेने में या अपील करने तक इट इज ऑल फेसलेस, और ये बहुत अच्छा है. मेरे वीडियोस बहुत सारे हैं कि लोग इस तरह से फेक क्लेम कर रहे हैं, चाहे वो 80D होता था, 80DD होता था, 80G होता था, 80DD भी होता था. घर में पेरेंट्स नहीं है और मैं पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा हूं. घर में कोई कैंसर का मरीज नहीं है और कैंसर का मैं ले रहा हूं 80DD के अंदर. ये सब कुछ चलता था, और यही रीजन है कि अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम बहुत अच्छा है. और इस बार तो कर दिया, उधर सरचार्ज निकाल दिया, 37 से ले आए 25 न्यू टैक्स रेजिम में, और इधर ओल्ड रेजिम को उन्होंने कुछ राहत नहीं दी. ओल्ड रेजिम को एज इट रखा है. ओल्ड रेजिम में 5 लाख को चेंज नहीं किया, नए टैक्स में तो 7 लाख कर दिया, ओल्ड रेजिम में वही 5 लाख. तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि लोग झूठ बोलने का उनको मौका दिया जाए. जब मुझे कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगी, मेरी कोई अट्रैक्शन नहीं है टैक्स बचाने की, क्योंकि नया टैक्स रेजिम मुझे बिना डिडक्शंस के, बिना एग्जम्पशंस के, मेरा टैक्स का अमाउंट कम है, तो मैं फिर नए में जाऊंगा ना, मैं पुराने में क्यों अपना डिडक्शंस क्लेम करूंगा. तो ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि न्यू टैक्स रेजिम जो है अब 95% लोग हिंदुस्तान में ऑप्ट करेंगे. The new budget 2023, one of you said this multiple times at multiple forums that India is a face of from developing to a developed economy. So it would take some time to India to get settled on things, particularly which India is, I think, much more focused on infrastructure segments and the manufacturing growth. I think the budget is actually very good. But see, from the perspective of Indian people always think about my pocket and they don't think about the economy as a whole. Scenario or this methodology has to change in the coming years.
if you talk about any person in a person in London or in United States, you will see that they are much more concerned about if the government have much more money to finance them or not, if they have a better road, better infrastructure, and better manufacturing capabilities. But if you talk about Indian people always think that, is government charging less tax? Is there any way which I can get a tax relief, or I should not pay the taxes? सबसे ज्यादा अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड का, there is a data where people, जहाँ पे सबसे ज्यादा चोरी होती हैं, जहाँ पे स्विस बैंक सबसे ज्यादा अकाउंट्स हैं, a significant portion of money as a black money. क्योंकि इंडियन पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट मी, दिस इज अ जनरल ट्रेंड ऑफ इंडियन पीपल. सो प्रॉब्ली हो सकता है कि बजट हर एक इंडियन लोगों को अच्छा ना लगे, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा रिलीफ या उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिले. बट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव द बजट इज वेरी गुड, and the ministers in the Modi cabinets are much other people who can look future, are more into developing India where it should be, from moving from developing country to a developed country, a bit on developing infrastructure, developing electronic cars, electric segments. I think that's a bit which India has to grow, and India is doing tremendous in that. हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो था वो 37% था, उसको 25 कर दिया. नंबर ऑफ स्लैब फ्रॉम 6 to 5. एग्जीक्यूशन लिमिट 2.5 लाख to 3 लाख कर दिया, और सेक्शन 87 एक रिबेट बढ़ दी 5 to 7. ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई चेंज नहीं, और पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर कर रहे हैं. पैन कार्ड सब जगह ये कंपलसरी कर देंगे. अपर लिमिट अभी 54 एक्ट में 10 करोड़ की कर दी गई. लीव एनकैशमेंट को नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 3 लाख से 25 लाख कर दिया. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 15 लाख से 30 लाख कर दी. ये इंडिविजुअल्स के केस के हैं सारे. महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए कर दिया 7.5 इंटरेस्ट, और पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम इंक्रीज कर दी 4.5 लाख to 9 लाख, और ज्वाइंट लिमिट 9 to 15. तो ओवरऑल जो इंडिविजुअल्स के केसेस में है, मुझे तो बजट काफी अच्छा लगा और काफी रिलीफ देने वाला है और लोगों को. और मेरा पास कंपैरिजन भी है कि ओल्ड रिजीम में अब लोग नहीं जाएंगे. पीपल विल प्रेफर टू गो फॉर न्यू रिजीम. जी सर. In the chat box, we'll take it up later. देखो, हम तो रामदेव की तरह चाहते हैं बिल्कुल इंटरनेट बस खत्म कर दो. दैट इज द बेस्ट. सबसे अच्छा, सबसे जैसे भी सर बता ही रहे थे भाई, टैक्स देने में देखो हिंदुस्तान में मैक्सिमम टैक्स रेट 72-73 फाइनेंशियल ईयर 97.25% था. मतलब मैं 100 रुपये कमाऊंगा, 97.25 रुपीज दूंगा गवर्नमेंट को, तो देखो टैक्स की चोरी तो होती थी. और आज भी 42.66 है, और ये बहुत ज्यादा है. आज भी बड़ा चुभता है कि ओल्ड रिजीम में जाऊं 30% पहले तो टैक्स दूंगा, फिर उस पर 37% सरचार्ज हो गया, फिर उस पर हेल्थ एजुकेशन, तो 43% भी चुभता है. और मैं अल्टरनेटिव की बात करूं तभी 40 के आसपास हो गया. तो सर अभी भी टैक्स रेट बहुत ज्यादा है. इनको आप जीएसटी की तरह 18%, 20%, 25% पर ले आओ, टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा, टैक्स की चोरी कम हो जाएगी, और लोग अपने आप टैक्स देंगे. या अब गवर्नमेंट ने सिस्टम ऐसा कर दिया. न्यू टैक्स रेजिम लाने का पर्पस ये था कि सिस्टम ने AIS है, टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी है, इस तरह से सिस्टम डाल दिया है कि आप टैक्स की चोरी करना चाहो तो आज की टैक्स की चोरी कर नहीं पाएंगे ना. 10 लाख की FD करा दो, 10 लाख का डिपॉजिट करवा दो, आप गाड़ी खरीद लो तो TCS कट जाएगा, आप बैंक में अकाउंट खोल लो तो बैंक वाला बता देगा आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना है. अब तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी इनकम टैक्स के पास पहुंच जाता है, FDR का इंटरेस्ट भी पहुंच जाता है, TDS भी कट जाएगा. अब तो धीरे धीरे मोदी जी मतलब घर में घुस के पैसा लूटेंगे हमारा. चिंता नहीं करो, मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट. लेकिन जो पहले हमें आदत जो पड़ गई थी ना चोरी करने की, चोरी चपाटी, वो लगभग काफी खत्म हो गई है. और इसमें मैं दोबारा सौरभ के सामने सौरभ को कह रहा हूं, ये हम ही सिखाते थे. सीए के पास जब लोग जाते थे ना, सीए ही पूछता था आपको सर टैक्स कितना देना है, 2 और 2 4 करने हैं, 6 करने हैं, 8 करने हैं. सीए जो होते हैं 2 और 2 4 भी कर सकते हैं, 2 और 2 5 भी कर सकते हैं, और 2 और 2 0 भी कर सकते हैं. ये एक्सपर्टाइज है सीएस की. अभी जब सीएस की मीटिंग हुई थी 2017 में, जब जीएसटी आया था, उस दिन मोदी जी ने सीए वालों की क्लास बहुत अच्छी ली थी जब नोटबंदी हुई थी. तो ये सारा जो अब जो सीए हैं,
अब इनकी फीस बढ़ गई है। सर आपने फीस बढ़ाई नहीं बढ़ाई? अब देखो 2 नंबर का पैसा तो हो गया खत्म, अब हमने फीस बढ़ा दी है, मैंने भी अपनी फीस बढ़ा दी है। देखो पहले जितनी हेरा फेरी होती थी, अब हेरा फेरी ITO हमारा कोई है ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ITO है। जब मेरी स्क्रूटनी होगी, मुझे नहीं मालूम कौन मेरी स्क्रूटनी करेगा, मुझे नहीं मालूम कि उसको प्रोसेस कौन करेगा, फाइनल रिजल्ट कौन देगा। तो टैक्स की हेरा फेरी हो गई बहुत कम, और ये देश के लिए बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता था, मेरे पड़ोस में बिजनेसमैन है, उसके एयर कंडीशन 3 फ्लोर की दुकान है और वो टैक्स मुझसे कम देता था। अब क्या है कि जब मुझे लग रहा है कि दुकानदार भी टैक्स की चोरी नहीं बचा पा रहा, अब मोदी जी ने जो पेटीएम शुरू किए हैं, छोले भटूरे वाला भी पेटीएम से पैसे ले रहा है। अब उसकी सारी सेल वहां रिकॉर्ड हो रही है, उसको पता नहीं लग रहा अभी, वो तो बाद में पता लगेगा। आज से 2 साल के बाद पता लगा उसकी सेल हो गई है 5 लाख और रिटर्न वो भरता नहीं आज तक। तो ये धीरे धीरे मोदी जी का चाबुक जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूं कि करप्शन इनकम टैक्स में कम से कम मैंने पिछले 25 साल में धीरे धीरे कम होती बहुत देखी है, और पिछले 2 साल में तो लगभग 0 के बराबर आने लगी है। जी सर। I think, as I already told you, that I think India is actually in the line where a developing economy should move to a developed economy. I think the only thing which I would be looking for in the coming years, and I think we have raised this point multiple times to the ministry also, that I feel there should be a, let's say, if you allocate 1,000 crores to a particular sector or a particular infrastructure, lot of time which I feel that the government expenditures are not clearly visible. Let's say आपने estimate किया बजट के अंदर, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने किया 120-130 करोड़ रुपए, एंड वो 130 करोड़ रुपए सब बहुत सारे मिडिल मैन लोग खा गए उसके अंदर पैसा। तो दैट ट्रांसपेरेंसी इज व्हाट आई एक्सपेक्ट इन द कमिंग ईयर। समवेयर द गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर दिस, बिकॉज 2% 4% हर इकोनॉमी में लॉस होता है बजट में, बट इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मनी जो मिडिल मैन के पास चला जाता है, उससे आ पाता प्रोडक्ट्स का जो गवर्नमेंट बनाना चाहती है। And I just give you an example. If people know that we are coming with a new project where we are building a direct connect from Delhi to Mumbai highway. Cost estimate किया था, I don't remember the exact number. Approximately 7,000 crore का number था, and the actual estimated cost went to 12,000 crores. आपने 7,000 करोड़ estimate किया, आपने एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 5,000 करोड़ रुपए खा गया। तो वो 5,000 करोड़ रुपए हैज बीन गिवन बाय मी और यू। आई फील मोर ट्रांसपेरेंसी आने की जरूरत है इंडिया में, बट सी एज आई ऑलवेज से दैट इंडिया इज इन द स्टेज ऑफ मूविंग फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमी टू अ डेवलप्ड इकोनॉमी टाइम। ऑन द आई थिंक वी आर ऑन द राइट स्टेज ऑफ अ कंट्री विच 150 करोड़ लोगों को संभालना, इट्स नॉट अ इजी चैलेंज। I've been into 40 plus countries, और मैं अभी लास्ट वीक मोरक्को में था पूरे टाइम, एंड इट इज ऑल्सो अ डेवलपिंग इकोनॉमी। किसी से भी आप कंपेयर करेंगे विच इज इन द, बट आई थिंक इंडिया इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। Thank you so much, sir. So, my last question is for managing finances at personal level. ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, ज्यादा टैक्स दो। कमाओ ज्यादा ना, टिप्स यही है, ज्यादा कमाओ। आप छोटा सोचो ही नहीं, ज्यादा कमाएंगे गवर्नमेंट कितना टैक्स ले लेगी बताओ? मैक्सिमम 30% ही तो लेती है, 30% ज्यादा लेती ही नहीं। अब कई बार क्या होता है, सैलरी वाले पता क्या कहते हैं, मेरी इनकम तो बढ़ी, 100 रुपये टैक्स ज्यादा पड़ गया। अरे मैं कहता हूँ 100 रुपये की इनकम मैक्सिमम टैक्स तो 30% ही लेगी गवर्नमेंट, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकती ना। आप ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, ज्यादा चीजें खरीदो, क्या बुरा है इसमें? और गवर्नमेंट इसलिए तो आपको अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में लाने का पर्पस भी है कि आप ज्यादा खर्च करो, और ज्यादा खर्च करेंगे इकोनॉमी ज्यादा डेवलप करेगी। उसमें है क्या, हमारी कंट्री डेवलपिंग से हमने डेवलप बनाना है इसको, कंट्री को विद इन, जब तक मोदी जी 2029 तक तो मोदी जी आएंगे, तो 2029 तक कंट्री हमारा डेवलप्ड कंट्री में होना चाहिए। क्यों सर? अब मैंने उसमें एक तरफ डिडक्शन डाल रखी है, एक तरफ इनकम डाल रखी है, फिर उसको कैलकुलेशन की फॉर्मेट डाले हुए एक्सेल में सारे। हाँ ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है वो सौरभ, ये मैंने शीट तैयार की थी, कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम। तो सर मेरा सवाल आपसे ये था सर, 32 या 33% समथिंग अराउंड उन्होंने बजट का अलॉटमेंट कम कर दिया था, जो उन्होंने स्पीच में ही बोला था फाइनेंस मिनिस्टर में कि वी आर फोकसिंग ऑन सब 3, दैट इज द 7 पिलर्स। इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और कहाँ थोड़ा
कर्टेल कर सकते हैं, लाइक जैसे यूथ पावर था, ग्रीन ग्रोथ था, फाइनेंशियल सेक्टर, उन्होंने बहुत जगह की मेंशनिंग करी थी कि इन योर ओपिनियन व्हाट हैव मोर ग्रोथ एंड कहाँ पे अगर बजट कम कर सकते हैं, तो दैट इज So I think let's see from our perspective. हमें for example pocket money मिलता है 10,000. Let's see from my perspective, I would recharge my phone first. That would be a second perspective. Third perspective, I have to eat out. I have to take is going on to convert the countries from a diesel or a petrol economy to a electric economy. आप देखो, मैं यूके के रोड पे ड्राइव करता हूँ, मैं देखता ही नहीं कोई पेट्रोल कार है कहीं पे भी. ईवी कार्स आर देयर. इंडिया, आई थिंक द बजट इज मोर ओरिएंटेड कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है. एक पर्टिकुलर जो भी आप स्कीम बता रहे हैं उसमें इन्वेस्ट डिक्रीज इसलिए क्या होगा प्रॉब्ली. लेट्स से इफ यू रिमेंबर कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारा फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था. इफ समवन रिमेंबर दैट, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो हर दिन एक कार गाड़ी आती थी जो हर सोसाइटी में फूड डिस्ट्रीब्यूट करती थी फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट. बट अगर आप एक्चुअली देखेंगे द बेनिफिट हैज नॉट रीच आउट टू द पीपल जिनको वो चाहिए था. बहुत सारे वेल इक्विप्ड लोग भी वो हैं, अगर उनका इम्पैक्ट डायरेक्ट लोगों तक नहीं पहुंच रहा, एंड द इवेल्युएशन ऑफ मिनिस्ट्री, पीपल हु इज एक्चुअली वर्किंग टू दैट फील्ड आइडेंटिफाई कि उसका इम्पैक्ट लोगों तक नहीं पहुंच रहा और उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो वो पैसा डाइवर्ट करके कहीं और लगा देते हैं, probably buy something different and not spend. So I think that's was the objective of the government. तो ये जो आप स्टूडेंट्स हैं, ये सेकंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं? फर्स्ट ईयर के बीच में समीक्षा? सर सब लोग अलग अलग स्ट्रीम्स अच्छा, अलग अलग स्ट्रीम के हैं. एज ग्रुप्स हैं. तो डीयू के हैं, डीयू से बाहर के हैं? सर वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम श्रीलंका एज वेल. ओके, राइट. क्योंकि डीयू में अभी वो फर्स्ट सेमेस्टर में एक वैल्यू एडिशन का कोर्स का पेपर आया है हमारा, फाइनेंशियल लिटरेसी, उसमें पर्सनल टैक्स है. मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी हम इनकम टैक्स की जानकारी दे रहे हैं इस बार. और इनकम टैक्स तो मैं कहता हूं पेपर कंपलसरी होना चाहिए सबके लिए. और जो सौरभ अभी कह रहे थे ना कि वो इनकम टैक्स सिंप्लीफाई हो रहा है, इनकम टैक्स कितना ही सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन रिटर्न भरनी फिर भी लोग सी और टैक्स कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं. कितना सिंप्लीफाई कर लो, इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर लोग डरने लगते हैं. उनको ये नहीं पता ना AIS में क्या होगा, उनको ये नहीं पता कि इनकम टैक्स के पास कैसी कैसी इंफॉर्मेशन किस किस तरीके से पहुंच जाती हैं. अब आपने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको 1% TDS काटना है, अब ये नहीं पता लोगों को. नॉन रेजिडेंट का आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसमें 24% टैक्स काटना है. टैक्स काट के जमा कब करवाना है, उस पर इंटरेस्ट पड़ जाएगा. एक डेट आपकी 30 अप्रैल की है, एक आपकी 7 को जमा कराना होता है. और एक गलती हुई, फटाफट इनकम टैक्स से नोटिस आएगा. तो लोग इनकम टैक्स के नोटिस से बहुत डरते हैं, इनकम टैक्स की पेनल्टी से लोग डरते हैं. तो ऐसी बात नहीं सौरभ, बिल्कुल चिंता नहीं करो. हिंदुस्तान में कितने टैक्स सिंप्लीफाई हो जाए, टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस दिन पर दिन बढ़ रही हैं. टैक्स कंप्लायंस इतना जबरदस्त हो गया है कि बिना CA के, बिना एक्सपर्ट्स के काम नहीं चल पा रहा. अब जो पेटीएम की जो मैंने बात की थी, अब उसको अभी तो पता नहीं है, बाद में नोटिस आएगा. पहले रिटर्न्स हमारी जाती थी आफ्टर द ड्यू डेट, बिलेटेड. अब गवर्नमेंट एक लाई अपडेटेड टर्म. अपडेटेड टर्म्स में लोगों ने क्या किया, मेरे पास सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ रहा है मेरे 80,000 रुपया, और मैं उसको दिखाई नहीं रहा. अब बैंक के पास सेविंग बैंक इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, वो मेरे AIS में पहुंच गई, और मैंने इनकम टैक्स में दिखाया नहीं. वो आज की डेट में अपडेटेड टर्म भर रहा है. और मैं बताऊं सौरभ, अपडेटेड टर्म भरने की फीस नॉर्मल फीस से डबल है. तो CA का काम कम का हुआ, CA का काम तो बढ़ गया. अब हमारे हिंदुस्तान में मतलब या तो ईमानदारी से काम कर लो, लेकिन ईमानदारी से काम करने के लिए आपको पता तो हो कि इनकम टैक्स की नजरें कहाँ पर है. और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरें आपके बैंक अकाउंट तक भी हैं, आपकी प्रॉपर्टी खरीदने पर भी हैं, आपके FDR पर भी हैं, आप कार खरीदो उस पर भी हैं, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर करो उस पर भी हैं, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हो उस पर भी है. आपको बड़ा अच्छा लगता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट तो की आपने पूरे साल में 7 लाख की, 8 लाख की, और आपकी इनकम आ रही है पीछे से 6 लाख, तो 2 लाख रुपए कहां से आ गए. तो गवर्नमेंट का मैं कहता हूं तरीका बहुत अच्छा है. हाँ, CA फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो निकाल लेते हैं. ऐसा नहीं हो सकता, CA कहेंगे कि ऐसा कर तो 2 कार्ड बनवा ले. अरे 2 बैंक अकाउंट खोलना, तेरे को 2 FDR करनी है ना. अरे तो एक पंजाब नेशनल बैंक में कर ले, एक दूसरे बैंक में कर ले, उसमें अमाउंट ऐसे रख कि TDS के दायरे में ना आते हो. तो सौरभ, तुम अपनी कितनी अच्छाइयां कर लो, कितनी बुराई कर लो, अब CA की टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत ज्यादा हो रही है.
क्योंकि मुझे मालूम है कंप्लायंस अब बहुत ज्यादा, पहले उसका AIS, TIS, उसका फॉर्म 26S और सारे डॉक्यूमेंट्स मैं ही चेक करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तेरा टैक्स एक्सपर्ट भी हूँ, टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ और इनकम टैक्स ऑफिसर भी मैं तेरा हूँ। मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। और CA भी आजकल थोड़ी सी बदमाशी करने लगे, उनको भी फिर नोटिस आ जाते हैं। तो आजकल हमें ईमानदारी तो अब बरतनी पड़ेगी, और ये हम पहले 10 साल में कुछ सीख गए हैं। 2 साल से फेसलेस हो गया, आगे आने वाले 5 साल मोदी जी जरूर आएंगे, हमें ईमानदारी हमारे खून के अंदर भर के जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सिस्टम आगे आने वाला बहुत अच्छा होगा। यदि मेरा पड़ोसी भी टैक्स दे, मैं भी दूं, तो मुझे बिल्कुल नहीं फील होता। मुझे खराब तो लगता है जब मेरा पड़ोसी तो टैक्स दे नहीं रहा, उसकी इनकम मुझसे ज्यादा है, तब मुझे बुरा लगता है। और अब तो बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं। और रिटर्न भरना, अब एक बीच में कॉमन टैक्स फॉर्म आ रहा था, कॉमन इनकम टैक्स फॉर्म, IT से लेकर IT तक। अब वो पता है क्या नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया, क्या हुआ, फिर उन्होंने पुराने वाले फॉर्म ले आए, अभी भी डाले 2-3 दिन पहले। तो लेकिन मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरना मतलब देखने में बड़ा इजी लग रहा है आपको कि 3 पेज का फॉर्म है, 29 पेज का फॉर्म है, लेकिन भरने में एक एक फिगर के पीछे बासरो अंबानी है या अडानी है। अरे फॉर्म तो कंपनी का वही है ना, IT वाला, उसको भरने में उनके पीछे देखो टैक्स कंसल्टेंट्स करोड़ों रुपए की सैलरी जाती है, करोड़ों रुपए की सैलरी। तो लेकिन वो ITR का जो फॉर्म है ना, वो इतना इजी लगता है आपको कि आप या तो फिर एक काम करो ना, जितना एक्ट है उसको बिल्कुल सिंपलीफाई कर दो, सिंगल, बस सिंपली सब लोग 10% टैक्स दे, कुछ कर ही ना। जैसे रामदेव कहते थे, बस एक कैश ट्रांजेक्शन टैक्स लगा दो, बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन जो हमारी इनकम टैक्स बना, उसके पीछे कई तरह की भावनाएं हैं, कई तरह की पॉलिसीज हैं। अब सब तरह के, अब GST की तरह तो कर नहीं सकते कि आपने मोबाइल चार्ज किया, चाहे गरीब है अमीर है, सब पर वो 18% लग रहा है, ऐसा नहीं कर सकते ना। इनकम टैक्स में फिर भी हमने 2.5 लाख 3 लाख प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सरचार्ज माफ कर दिया, सरचार्ज लगा दिया। अब एक ही इनकम है, वो आपकी टैक्स फ्री भी है 7 लाख तक, 7 लाख के बाद फिर 10% भी है, फिर 15 भी है, 20 भी है, 30 भी है। तो देखो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और घर में 4 मेंबर हो तो 4 मेंबर में जो ज्यादा कमाएगा, पेरेंट्स उसी से तो कहेंगे ना भी तो थोड़ा घर में सारा ज्यादा लगा। जो बेचारा खुद ही खाने को मोहताज है तो हमें उसको, निकम्मा जो बंदा है उसको तो रोटी बैठ के खिलानी पड़ेगी। Sharing your informative views, and it was a very interactive and informative session. So thank you so much, Mr. Saurabh Gupta, and thank you so much, Dr. SB Rathore sir. Thank you so much for joining us and enlightening us with your views. थैंक यू सारा, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक यू समीक्षा। ओके बाय बाय। और कोई क्वेरी है तो मेरा मेल आपके पास पड़ा है, और ये जो लेक्चर है वो मेरा उस पर YouTube पर भी होगा।